So the idea of hosting this program was basically to make people realize that everything has a cycle. Like we get food from our the farms and all that thing, but that what we are not using in the kitchen, the seeds which are left in the chopping board, the peels, everything, basically the water impact where we soak the thing can go back to the water and can go back to the soil and be the part of the system and come back to us. So that's the name why is this kitchen se kitchen, that we use in the kitchen, and whatever we are not using in our kitchen goes back into the soil and it can come back. Maybe we are not able to grow completely again, and maybe we will be still dependent upon the farmer and other people, but can we reduce that load? Can we have that fraction of thing which we can grow by ourselves and bring all the things back to the system? So that last day, it was an orientation to give you an idea that kitchen is the storehouse and you can start using that. And today we kept this meeting to understand what is the challenge, what is the issue you are facing. आप लोगों को क्या क्या issues आ रही है ये चीज करने में, और क्या हम support कर सकते हैं. और केना जी काइंड एनफ थी, वो कंपोस्टिंग के बारे में आप लोगों को शेयर करेगी. शी विल बी शेयरिंग अबाउट कंपोस्टिंग, कि कैसे घर पे जो हमारी सब्जियों के छिलके होते हैं और जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उससे हम अपना खाद कैसे बना सके. This compost becomes a very very nice fertilizer. Believe me, they are so powerful for the plants. So I hand over to Kenna so that you can take upon to share about something about composting. And I give you the right to share. Thank you, Kritika ji. Yeah, I have made you the co-host. Yeah. Okay. ये कृतिका जी, एज यू सेड ना, किचन से किचन तक, किचन का जो है वो किचन में वापस ही आएगा थ्रू द कंप्लीट साइकिल. So sometimes what happen ना, we are just confused with the word कि कंपोस्ट यार वो क्या है ना, जैसे रॉकेट साइंस है, आएगा नहीं आएगा, क्या होता है. तो ये वर्ड्स और उसका मीनिंग सब देख के ना थोड़ा हमेशा वो हेजिटेशन आ जाता है. And we are afraid of attempting that कि नहीं भाई नहीं कर पाएंगे. But जैसे we all know, whether we are doing it kitchen gardening or normal gardening, कुछ भी करते हैं, we know कि soil का importance क्या है. We need a fertile, enriched soil. So through soil, our plant can, plant will grow healthy and it will give ऐसा होता है जिसके बच्चों को छोटी एज में खिलाते हैं, तो it's for their immunity. तो this soil enrichment is work the same way. प्लांट को हेल्दी बनाता है, प्रॉपर पेस्ट कंट्रोल्स, पेस्ट से सारे जो भी प्लांट्स की डिसीज है उसको फाइट करने में सॉइल बहुत बड़ी एक इट्स अ बिग पार्ट. सो we are spending so much money by buying organic fertilizer, whether it is farmyard manure or vermicompost or completely composed cow dung manure. तो वो सब चीजें we are buying it, we are getting a good result with that, but somehow somewhere it is affecting our budget. अगर सोचते हैं तो 5-6 pots है तब तक we'll manage, but when we are expanding it or when we are doing it on a daily basis, it somewhere it will affect our budget. I said कि थोड़ा वो अच्छी चीज लेने जाते हैं, क्वालिटी कंपोस्ट लेने जाते हैं, तो वो थोड़ा बढ़ जाता है हमारा बजट. बट द होम कंपोस्टिंग इज सच अ वंडरफुल प्रोसेस, सच अ वंडरफुल पॉजिटिव प्रोसेस, कि जो हम फेंक देते हैं सिंपली डस्टबिन में, उसका ही हम रीयूज करके एक ऐसा कंटेंट, ऑर्गेनिक मटेरियल हम हमारे किचन के लिए बनाए, हमारे गार्डन के लिए बनाए, और through that we can enrich our soil. So
And composting is completely natural process. It's not in rocket science. What we are doing, we are just giving a favorable condition to that kitchen wet waste, and after a period of time it will convert into black gold. Usually we live, and I learn compost, I use that word कि black gold है ये हमारी soil के लिए. So it's simple, convert the wet kitchen waste into the organic material. Now how to set up a compost bin. कभी कभार ऐसा होता है कि क्या ये प्रोसेस में we want to start, but you know we see के कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है. तो I said कि ये बहुत easy, pocket friendly है. You don't need a big resources for this. You don't need huge investment, nothing. You can simply start your home composting by set up a compost bins. Abhi, now what is compost bins? As you have seen on the slide, कि ये एक compost bin ऐसे ready-made भी मिलते हैं बाजार में, और you can make your own compost bin by drilling on the drum जो और grains के drum या water के जो drum आता है. You have to simply put a hole on that. We can use any of the jar or bucket है, कुछ भी है जो प्लास्टिक का है, और we don't need it. Sometimes what happen कि we buy a jar और after a few month or a year we can see कि उसमें scratches बहुत सारे आए गए, तो we are not using it for the storage of kitchen grains. So we can use that also. वाटर के जो ड्रम है या डस्टबिन है, या इवन दो वी कैन यूज जो कलर पेंट के जो डब्बे आते हैं, वी कैन यूज दैट. बट वी हैव टू मेक श्योर कि इसमें कंप्लीट हम काफी सारे 5 ईच के से होल बना दे. साइड वॉल में भी बना के रखना है और बॉटम में भी काफी सारे होल हो, जिससे क्या होता है कि एरेशन बहुत अच्छे से होता है. वी आर डूइंग एरोबिक कंपोस्टिंग, सो उसमें ऑक्सीजन का आना जाना वो बीन्स में लगा रहना चाहिए, तो composting process fast होगा. अभी now how to set up the compost bin? So it's very easy. What you can do, it is just a 5 steps process. At the base part जहाँ हमने hole बना के रखे, we to cover that holes, we can use any of the newspaper or a cardboard sheet. This is the reason is कि जो भी हम किचन वेट वेस्ट डालेंगे वो होल में लॉग होके होल को बंद ना कर दे. तो रीजन वी कैन यूज एनी ऑफ द जो भी रफ पेपर है, न्यूज़पेपर है, कार्डबोर्ड शीट है, जस्ट 1 लेयर हम उसका करेंगे. बट व्हेन यू आर यूजिंग न्यूज़पेपर वी हैव टू मेक श्योर कि वो प्लास्टिक में जो ग्लॉसी होता है ना वो ना हो, सिंपल हमारा पेपर हो. नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट आवर किचन वेट वेस्ट ऑन इट, और उसके ऊपर हमें कुछ भी ड्राई कंटेंट, वी कैन यूज अवर गार्डन सॉइल, और इफ वी हैव अ ड्राई लीव्स वी कैन क्रश इट एंड कीप पुट इट. वी कैन यूज कोकोपीट, और समटाइम्स अगर काउ डंग जो वो उपले होते हैं काउ डंग के, उसको इफ इट इज कंप्लीटली ड्राई उसको भी क्रश करके हम डाल सकते हैं. तो बस वी हैव टू मेंटेन द वेट एंड ड्राई रेशियो. इसमें कुछ भी 2 जेम कोई भी रेशियो फॉलो नहीं करना है. आपने अगर 1 बाउल किचन वेट वेस्ट डाला है तो उसके ऊपर जस्ट स्प्रिंकल एनी ऑफ दिस ड्राई कंटेंट एंड कवर इट विद द लीड एंड कीप इट असाइड. सो एवरी डे यू हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस. किचन वेट वेस्ट, उसके ऊपर एनी ऑफ द ड्राई फॉर्म, एंड यू हैव टू कवर इट एंड कीप इट असाइड. Every week, once a week, you have to just mix it with the kitchen metal rod or a wooden stick. कुछ भी उससे उसको सिर्फ स्टर करना है. So क्या होगा कि किचन वेट वेस्ट और ड्राई का जो हमने लेयरिंग फॉर्म करा है ना, वो लेयरिंग ऊपर नीचे होगा. So उससे क्या होगा कि एरेशन होगा और कंपोस्टिंग प्रोसेस उससे फास्ट हो जाएगी. We have to feel the bean. जहां तक है बीन, अगर हमने 15-20 लीटर का अगर बीन लिया है, जैसे हमारी बकेट होती है, so depends upon the family members. If you have a 3 to 4 family members at so 3 to 4 bean is sufficient for that. So once it is full, now you have to keep it aside and then start with the second bean. But every week, once in a week, you have to make sure कि आप उसको mix करें properly.
सो एरेशन होगा, कंपोस्टिंग होगा, और जैसे जैसे कंपोस्टिंग प्रोसेस होगी ना, यू कैन सी दैट वॉल्यूम ऑफ द कंटेंट विल डिक्रीज, सो यू कैन ऐड मोर कंटेंट इन इट. अभी समटाइम्स यू फील कि जैसे समर सीजन अभी चल रहा है तो मॉइस्चर बहुत कम होता है, और जो भी होता है वो इवोपरेट हो जाता है. सो इफ यू सी दैट योर कंपोस्ट इज टू ड्राई, what you can do, you can sprinkle water, और जो हमारी खट्टी छाछ होती है घर की, वो हम सब स्प्रिंकल करके उसमें मॉइस्चर कंटेंट ला सकते हैं. ये मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, हमारे माइक्रोबियल जो एक्टिविटी होती है ना, बिकॉज एज आई सेड कि कंपोस्टिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, सो दे नीड एयर, मॉइस्चर, इन हमारा जो वेट वेस्ट है, और जो कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो, आई डोंट वांट टू गो डीप इनटू दैट, वी हैव टू सिंपली सी के वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, और थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर हो, और एरेशन तो है ही. सो ये चार चीज का कॉम्बिनेशन से हमारा होम कंपोस्ट रेडी हो जाता है. समटाइम्स व्हाट हैपन कि अगर मॉनसून सीजन है या विंटर सीजन है, एट दैट टाइम वी सॉ कि अवर कंपोस्ट इज बहुत मैशी हो गया है, बहुत मॉइस्चर है, तो एट दैट टाइम यू हैव टू पुट मोर ड्राई कंटेंट. कुछ भी ड्राई लीव्स अगर आपने स्टोर करके रखे हैं, या गार्डन, समटाइम्स यू कैन ऐड कार्डबोर्ड जो आता है हमारा, वो अमेजोन का और किसका भी गिफ्ट पैक का जो कार्डबोर्ड आता है विदाउट प्लास्टिक और विदाउट प्लास्टिक रैप, you can use that also. So once the bean is full, na, after the last input, 25 to 30 days maximum, you can see that your home compost is ready. Now see, this is the way I have set up my beans. You can simply pile up the beans also. What I have done, I have covered the beans, and as well as I have put one tray at the bottom part also. The reason is कि sometimes अगर बहुत ज़्यादा moisture content हमारे kitchen wet waste में होता है ना, तो black, जो एक black color का liquid ooze out होता है, we called it compost tea. It is very highly nutritive product. You can use that compost tea on the same day. If you see कि tray में थोड़ा black liquid आया है, the same day you have to dilute it. जैसे अगर आई सेड 1 part अगर कंपोस्ट टी है, उसमें 10 part आप पानी मिला के उसको डाइल्यूट करके you can give it to your plants. It is very healthy, quick nutrient our plant will get from it. So we can set compost bin like this. Once I said after 25 to 30 days, our compost will completely convert into this type of blackish brown color, plumpy organic material. You can hardly recognize कि आपने क्या डाला था उसमें. It will eventually सब कुछ एक form में convert हो जाएगा. Sometimes it's happen कि अगर हमने कुछ hard चीज डाली है, जैसे किस चीज का seeds है, या जैसे वो कहते हैं मूंगफली खाते हैं तो उसका वो छिलका होता है, वो सब थोड़ा हार्ड होता है, तो वो इतने 25 to 30 डेज में वो कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो पाता. उसके लिए हमें व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिंपली, अगर आफ्टर 25-30 डेज यू सी के ये रेडी हो गया है, यू सिंपली एम्प्टी द बिन. उसको फैला के आप बड़े बड़े चंक्स आपको अगर दिखते हैं, यू जस्ट सिंपली पिक दैट चंक्स एंड ऐड इट इनटू द अदर बिन व्हिच इज अंडर प्रोसेस. कभी कभार जो हमने ड्राई कंटेंट में ट्विग्स डाली होती है, लीव्स की जो डंडियां होती हैं, वो भी थोड़ी हार्ड होती है, तो उसको भी हम निकाल के वी कैन कीप इट इन अदर जो बीन हमारा चल रहा है प्रोसेस, उसमें आप डाल सकते हैं. सो इट्स हाईली, ये कंपोस्ट है ना हमारा, we can use it 25 to 30 days के बाद. ये complete जो फार्म यार्ड मैन्योर बाजार से लाते हैं वो नहीं हो पाता. ये we can use it as a mulch. Mulching means those who are doing gardening, they are aware कि what is mulching, but those who are new, I'm just explain you कि जो भी हमारा पॉट है, या हम क्यारी है, या कुछ भी कंटेनर में हम हमारे पॉट्स उगाते हैं, what you have to do, you have to remove 1 or 2 each layer of it. सॉइल का आप निकाल लो, और जो भी हमारा रेडी कंपोस्ट है ना, आप उसमें उसको एज अ टॉप सॉइल आप उसको बिछा दो. जैसे जैसे पानी आप डालोगे, तो वैसे जो भी कंपोस्ट का न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो सॉइल थ्रू सॉइल में जाएगा, और रूट थ्रू प्लांट्स को वो मिलेगा. और इवेंचुअली जो भी चीज अगर कंपोस्ट नहीं हुई है ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, इट इज इवेंचुअली कंपोस्ट.
बट वी मेक श्योर कि ये जो कंपोस्ट बना है ना उसको पॉट मिक्स की तरह आप इनिशियली यूज ना करें, बिकॉज मैंने जैसे कहा कुछ कुछ चीजें कंप्लीट हो गई होती है कंपोस्ट, कुछ कुछ चीजें पार्शियली कंपोस्ट हुई होती है। तो इफ वी मिक्स इट विद द सॉइल और पॉट मिक्स की तरह यूज करते हैं ना, तो व्हाट हैपन के जो डिकम्पोज नहीं हुआ है दे विल नॉट गेट एयर, और वो उसमें कभी कभार फंगस लग जाता है एंड इट विल यू नो डैमेज आवर प्लांट्स। तो यूज इट हैज अ मल्च ओनली। But if you have enough pot mix and everything, so the same compost you can keep it for 2 months. जैसे पर उसमें मॉइस्चर 20% मॉइस्चर का ध्यान रख के we can store it for in a aerated container for 2 months. After 2 months you can see it is completely turn into the manure and you can use it as a pot mix. जैसे मैंने आगे कंपोस्ट का बताया था कि ब्लैक लिक्विड यूज आउट होता है, यू हैव टू डाइल्यूट इट विद द वाटर एंड गिव इट टू द प्लांट्स. So this is all about the composting process. Usually what happens, like everyone likes gift. So our mother also, it's a time for us to react and give it back to the mother earth. बहुत simple logic है, soil से लिया है, soil को देना है. So sometimes we have a small setup and we don't have a much बहुत बड़ा garden नहीं है, और हम जो compost करते हैं वो काफी बच जाता है. तो इट्स अ सिंपल थिंग, वी कैन यूज इट. अगर कोई फ्रेंड रिलेटिव आता है गार्डनिंग तो उनको दे सकते हैं, या फिर जो भी रोड साइड हमारे प्लांट्स है, सोसाइटी के कंपाउंड्स में अगर ट्रीज या प्लांट्स है, वी कैन गिव इट टू दैट सॉइल एंड thus we enrich our soil. This is Kritika ji. Sorry, I haven't asked you, but this is the photo of my terrace gardening. I am from Ahmedabad. I am living in Ahmedabad. ये मेरे टेरेस गार्डन में मैंने सेटअप करा है गार्डन. And I am only using my compost, homemade compost and other non-toxic gardening techniques. And you can see it will turn out beautifully. My plants are quite healthy. And I need hardly बस एक watering करना पड़ता है regularly. I don't give much, or every 1 month, every month I will give my homemade compost to them. So कह सकती हूँ कि जो मैं action करती हूँ ना, ये 1-2 मिनट का every day, it is the reaction my plant is showing it to me. So this is all about, this is my kitchen gardening. I have started my kitchen gardening last year. So I will get good result also in this. This is also I set on the terrace. So this is all about composting. Thank you everyone. थैंक यू केना जी, बहुत बढ़िया से आपने कंपोस्टिंग के बारे में शेयर किया और आपने अपने एक्सपीरियंस से शेयर किया. एक क्वेश्चन था, हम क्वेश्चंस ले सकते हैं. नितिन जी का क्वेश्चन था कि वर्मी कंपोस्ट और नॉर्मल कंपोस्ट में डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा बता पाएंगे? एक्चुअली वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, अर्थवॉर्म का जो वर्म्स थ्रू ये कंपोस्ट होता है. होममेड कंपोस्ट तो हम किचन वेट वेस्ट से बना लेते हैं, पर वर्मी कंपोस्ट के लिए वी नीड अ अर्थवॉर्म. सो अर्थवॉर्म सॉइल थ्रू, एज वी नो, अर्थवॉर्म सॉइल ही डाइजेस्ट करता है और सॉइल ही वो रिमूव करता है. तो वो जो प्रोसेस उसके स्टमक में से आके बाहर जो निकलती है ना, दैट इज कम्प्लीटली वो मैन्योर होता है. वी कैन यूज इट एज अ पॉट मिक्स ऑल्सो. समटाइम्स यू कैन यूज सिंपल add vermi compost and start gardening also. But home kitchen wet waste का जो है ना, उसमें it will not completely decompose within a time frame. So vermi compost में without earthworm we cannot make vermi compost. और तो वो थोड़ा process quite lengthy तो नहीं बोल सकती, but थोड़ा complicated है, because we have to nurture the earthworm in that.
और किचन वेट वेस्ट तो काफी इजी है, अगर कुछ भी बालकनी है या वो जैसे चौक होता है या टेरेस है या कहीं पे भी आप सेटअप करके 2-3 बीन सेटअप करके आप इजीली घर पे ही बना सकते हो. यू डोंट नीड एनी अदर थिंग जो आपको बाहर से बाय करना पड़े. सो दैट्स द व्हाट लाइक वर्मी कंपोस्ट इज ऑल अबाउट. उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है. So, and I never try vermi compost at home. I usually bought it outside. और अगर home compost है तो मैं इतना अभी I have stopped buying. I'm just buying a garden soil. और ये home compost मेरा completely if you all can see, this is my अभी का ये ready-made compost है. I will show it. Wow. This is my it is not completely done. अभी इसको 1.5 महीना हुआ है. But as you can see, थोड़े big chunks रह जाते हैं. So that eventually I will pluck it and keep it on the other. ये twigs जैसे रह जाती है. तो जो भी अभी composting process चालू है ना, मैं उसमें ये डाल दूंगी. We can add egg shell है. अगर कुछ बचा हुआ खाना है, we can also add food in that too. Beautiful. And sahi baat hai, like why do we need a vermicompost? Maybe we need, but like when our kitchen and when our home is self-sufficient and when our plant is growing, like if the cycle is going inside the house, so why not try in the house itself? Why to like think, like at least take a step, and then if it is needed, we can think about in future about vermicompost and all that. Great input. And I loved the way you have shown the entire your compost journey. What I also do is I use as a mulch also, but sometimes what I do is I separate both the compost, like when the compost is ready, I can separate both the things. Like if there is hard particle and all that thing, I take it separate out, and in the next batch of compost I put that in. So in the next recycling, it takes some more time, and the compost, it goes in that process. It fastens up the next cycle also, and this can be mixed with the soil. So I just wanted to add this experience of mine. It was great. I think all the people have experienced. They were all sharing that they loved what you have shared, and they were so happy to know the basic terrace composting idea. There's a question in terrace gardening. घर की walls में सीपेज तो नहीं आता. सो अगर आप नीचे में अपना ये डालोगे, ट्रेज आते हैं, और ट्रेज अगर आप लगाओगे अपने उसमें, तो सीवेज नहीं आता. एंड अगेन हम पानी ओवर क्यों यूज करेंगे? हमें पानी को भी सेव करना है. सो इफ यू आर केयरफुल अबाउट दैट, माइंडफुल अबाउट दैट, देयर इज नो इश्यूज. In try to water the plant in the evening time. तो क्या होता है कि पानी भी कम यूज करना पड़ता है, बिकॉज जैसे शाम होती है, सूरज ढल जाता है, थोड़ा गर्मी कम हो जाती है, और प्लांट्स में जो भी हम वाटर डालते हैं वो कंप्लीटली वो इवोपरेट नहीं होता, वो कंप्लीटली सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है, और पूरी रात क्या वो ठंडक में वो प्लांट विल गेट दैट वाटर कंटेंट फ्रॉम सॉइल. क्योंकि हम जब सुबह धूप में डालते हैं तो वो बहुत जल्दी से इवोपरेट हो जाता है, और प्लांट के रूट्स को पानी नहीं मिल पाता. तो ट्राई टू ईदर ऑन द अर्ली मॉर्निंग, अगर आप 6-7 बजे से पहले कर सकते हो तो इट इज गुड, अदरवाइज इन द इवनिंग you have to water the plants. And we use plastic buckets and plastic waste for composting. Plastic bucket में आप compost बना सकते हैं बिल्कुल. Plastic waste for composting से क्या पूछना चाहते हैं, थोड़ा clear करेंगे? Yeah, Nitin is raising hand. Yes, Nitin. Hello, Dee. Sorry, I was not knowing the rules that I have to speak after the Didi finished its lecture. So I had many questions. So my first question is that how to avoid the smell from the compost coming?
Nitin ji, if you manage the dry and wet content ratio, na, the smell will automatically disappear. जनरली क्या होता है, हमारा किचन वेट वेस्ट ज्यादा मॉइस्चर होता है और हम ड्राई वेस्ट कम डालते हैं, तभी स्मेल का इश्यूज होता है. और यू हैव टू मेक श्योर जो भी बिन आप यूज करो उसमें होल्स बहुत सारे हो. जितने भी होल्स होंगे उतना एरेशन अच्छे से होगा और उसमें तो स्मेल नहीं आती. आई डू इट विद लास्ट 1 year बट हार्डली. हाँ, मॉनसून में कभी कभार हो जाता है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्मी कंपोस्ट एंड द ग्रामर? नितिन जी, अभी आप जब नहीं थे शायद आप मिस आउट हो गए थे. अभी केना जी ने डिस्कस किया था उसके बारे में, तो वी विल शेयर द रिकॉर्डिंग, आप उसको देख सकते हो. ओके, सो केना जी इज हियर. आपको जिनको भी कुछ कंपोस्टिंग के बारे में इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क हर. नितिन, वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट के बीच में नॉर्मली जो डिफरेंस होता है, शी जस्ट शेयर्ड few minutes ago, so you can go through the recording once the session is over. We will share that. Okay, sorry and thank you. Not a problem. You have if any other question you can ask Nitin. और कंपोस्ट में जैसे स्मेल, जैसा कि केना जी ने बताया कि स्मेल इंडिकेशन है, इसका मतलब का रेशियो मेंटेन नहीं है. और उसी तरह अगर आप बहुत लोग जैसे देखते हैं कि एंड्स और ऑर्गेनिज्म वगैरह बाहर भी आती है, उसका भी यही एक रीजन होता है कि वो बाहर सर्च करने के लिए आती है वाटर और हवा. अगर ये हवा और वाटर प्रॉपर नहीं है तो कभी कभी तभी वो निकल के आती है, अदरवाइज उनका फूड तो कंपोस्ट के अंदर ही है, तो उनको निकलने की जरूरत ही नहीं होगी अगर आप एरेशन और वाटर को अच्छे से मेंटेन करोगे तो. सो अगर मतलब यू कैन डू, इवन आई हैव डन इन माय बालकनी इटसेल्फ. सो अपार्टमेंट में भी हो सकता है कंपोस्टिंग, बट द थिंग इज यू हैव टू मेक श्योर कि आपका एरेशन और वाटर का कंपोजिशन रेशियो मेंटेन होना चाहिए. यस नितिन. Actually, I've seen some tiny white insects in my compost. It is a good result or a bad result? Keena ji, if you want to add something, you can add. What I have seen कि अगर ये होते हैं तो अच्छी बात है. जब तक वो बाहर नहीं निकल रहे तब तक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म ही है जो कंपोस्ट को ब्रेक कर रहा है. आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको रिसाइकल करने में हमें ये ऑर्गेनिज्म ही हेल्प कर रहा है. तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिज्म आपके सॉइल पे होगा वो आपके कंपोस्ट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वही आपको मतलब फूड पार्टिकल जो भी आपके कंपोस्ट में है उसको ब्रेक करके उसको टर्न कर रहा है गोल्ड में. Hina ji, if you want to add something to this, you can add definitely. Ritika ji, you are right. It is called maggots और इट्स अ नेचुरल कंपोजर. उसके बिना कंपोस्टिंग हो ही नहीं सकता. तो इट्स अ गुड थिंग कि आपके कंपोस्ट में वो व्हाइट जो आप बोल रहे हो इंसेक्ट्स होते हैं, एंड इट इज वेरी हार्मलेस. तो वो हार्डली कम आउट फ्रॉम द बिन. वो बिन में ही रहते हैं, बिन में ही वो खाते पीते हैं और वहीं पे साथ साथ वंस इट जो भी हमारा टर्न हो किचन वेट वेस्ट कन्वर्ट हो जाता है वो उसमें ही डिकम्पोज हो जाता है. So it is completely harmless, and it is good that if that maggots come into your wet waste. Instead of collecting food and other things, if I directly collect some dung of buffalo or cow and make the compost of it, will it be good or not good? No, actually, if you want to use
सॉरी कृतिका जी. नहीं आप ऐड बोलो फिर मैं ऐड करूँ. एक्चुअली ये जो काउडंग हम बात कर रहे हैं वो यू कैन यूज इट, बट वो अगर पुराना 1-1.5 साल अगर पुराना है तो ही आप यूज कर सकते हो, क्योंकि जो फ्रेश काउडंग्स होते हैं उसमें बहुत गर्मी रहती है, क्योंकि वो भी प्रोसेस कंपोस्ट नहीं हुआ होता है. इफ यू वांट टू यूज यू कैन कलेक्ट दैट उपला जो हम बोलते हैं काउडंग केक, आप उसको घर पे रखिए प्रॉपर. अगर उसको एरेशन मिलेगा आफ्टर 1 year और 1.5 year you can use it. It is very good, very nutritive, very highly fertile, but we have to make sure वो completely decomposed हो गया होना चाहिए, otherwise it will kill your plants. और adding to that, the purpose of doing composting is also कि हम मतलब घर का जो वेस्ट है वो लैंडफिल में ना जाके उसको यूज कर ले. सो जो हमारा वेस्ट हम जनरेट करते हैं उसका अगर आप मतलब ऑब्जर्व करके देखिएगा तो 40-50% हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जो हमारे प्लांट्स के अंदर ही सिस्टम के अंदर जा सकता है. तो क्यों ना हम उस चीज को यूज करें जो हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट और जाके पोल्यूशन ही क्रिएट कर रहा है अलग से. Yes, you are correct, and I have also felt that Yes, you are it is right. not good that we throw out throw out food waste, which is very good for our plants like that. And I think that we should try to reduce the garbage in our home as much as we can. Yes, we should try. Like we should use a recycle, reuse, recycle the thing. We all know, but sometimes what happens कि we are रह जाता है या sometimes we are hesitate of something, और एक मेरे करने से क्या होगा, कभी कभार ये भी हमारा बैक ऑफ माइंड में रहता है. बट आई मस्ट से ना कि जैसे single steps count. So as an individual, this is the only thing which we can do and we can help our mother earth, because greenhouse gas जो landfill से आता है, it is very like I am doing composting and I learn all these things. So इतने if one day if we had a time I will share that statistic data कि कितना कार्बन वो जो मीथेन गैस जो जनरली प्रोड्यूस होता है ये लैंडफिल से, it will make our earth warmer and warmer day by day. So as Kritika ji said, yes, जो हमें फ्री में मिलता है, why to throw it and why don't we use it and start composting? And it's a very beautiful process, I must say. At least once you have to try, and trial and error is the best thing. एक बार करोगे तो ही सीखेंगे. So initially we all get the problem, but gradually we'll learn. Actually, gradually Can I use the actual? Sorry, Dee, you can speak. Go ahead. No. You asked the question, no problem. I was just saying कि actually gradually we have to unlearn. हमें learning बहुत सारी है कि ये सब dirt है, कूड़ा कचरा है और ये गंदगी है, but इससे ज़्यादा pure कुछ नहीं है. वो जाके हमारा well-being earth का तो create कर ही रहा है, और anything which is happening to earth is impacting us directly or indirectly. तो अगर हम एक भी स्टेप, अगर मे बी हमारे सिंगल एफर्ट से कुछ नहीं होगा, 0.1% ही होगा, लेकिन 0.1% एटलीस्ट हम इम्प्रूव तो कर रहे हैं हैम पर नहीं करने की जगह. सो ग्रेजुअली हमारे एफर्ट से चेंज भी हो रहा है और लोग इंस्पायर भी होंगे धीरे धीरे. जैसे कि केना जी ने बताया आप गिफ्ट करो, तो व्हेन यू गिफ्ट योर कंपोस्ट, इवन इफ यू डोंट हैव अ स्पेस टू गार्डन, maybe somebody else will use that and they will get inspired by you to make the thing. And नितिन जी आप जो पूछ रहे थे एक्सेल्स वगैरह सब कुछ यूज कर सकते हैं. जितना ऑर्गेनिक वेस्ट है आप सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को अपने इसमें यूज कर सकते हो. So maybe we can quickly take 1 or 2 more questions if there is anything regard to that, and then we can end this call by 1:30.
So we have 12 minutes, around 12-13 minutes. If you are facing any challenges, अभी एक हफ्ते में जो भी challenges आई composting के regarding, कुछ challenges कुछ suggest करना चाहते हैं आप, क्योंकि ये पूरा intention है कि ये सीखे हम, ताकि हमारा जो system है वो उसमें कैसे ये convert हो रहा है, कैसे इस पे किचन से ही आता है और किचन पे ही जाता है, ये चीज हम अपना अगर करना सीख जाए तो हम अपने वेलबींग के साथ साथ अर्थ की वेलबींग पे बहुत सारा काम करें. तो इस पे डाउट या कोई क्वेश्चन, सजेशन, फीडबैक हो तो प्लीज आप दीजिए और शेयर कीजिए अपने थॉट्स. तो ये किचन से किचन का इनिशिएटिव का इंटेंशन है कि एक आर्मी क्रिएट हो, जो आर्मी बेसिकली अपने लाइफ में कॉन्शियस एफर्ट डाले, कॉन्शियस एफर्ट हर चीज के लिए, अपने फूड के लिए, अपने वेलबींग के लिए, और इन द वे जो कि प्रकृति के लिए, मदर अर्थ के लिए बेनिफिशियल हो. ये कुछ 1000 लोगों की आर्मी बनानी है जो कि कॉन्शियस इस पूरे फूड चेन के बारे में और अपने वेलबींग और अर्थ की वेलबींग के बारे में इंटरेस्टेड हो. और इसी के लिए ये नाम भी किचन से किचन, जैसे हम कहते हैं मिट्टी से आते हैं मिट्टी में मिल जाते हैं, तो इट इज फॉर एवरीथिंग. Like whatever we use in our kitchen, we not use anything which is in earth is actually going to the soil. So why not use in a better way, in a conservative way, in a conscious way? Apart from veggies and fruit peel, can we put rotten things and leftover food? So आप पके हुए खाने को अवॉइड कीजिए कंपोस्ट में, क्योंकि then the problem of smell and everything is there. The cooked meal you can give to people around you and don't put that in compost. Other than that, you can put rotten vegetables and leftover things which are in natural form in the compost. Kena ji, would you want to add anything to this? You are right. Try to avoid cooked food. But if you have, sometimes we have a roti or a paratha or dal or something, what you can do, you can sieve the dal and जो उसका जो उसको छान के जो पानी निकाल दो और जो भी हार्ड पोर्शन रहता है वो, that you can add it. रोटी के छोटे छोटे पीस करके यू कैन ऐड, बट ट्राई टू अवॉइड, जितना हो सके उतना कुक फूड मत डालिए. बट या अदरवाइज इफ इट इज देयर, देयर इज नो हार्म इन. So thank you. So I had kept one bean as a yes, Kritika. No, you share. I was just sharing thanks to you because of this whole effort and the whole PPT you made, and you're taking this session for everyone. Yes, please go ahead. It's my pleasure. Like, as I'm said, I kept one bean as a jiddi bean. जो जिसमें मैंने बोला ना, शीट्स हैं, कुछ छिलके हैं, वो थोड़े हार्ड रहते हैं, तो आई विल कीप दैट इन अ डिफरेंट बीन. उसको प्रोसेस होने में इट विल टेक 3 to 4 months, बट इट इज फाइन. इट इज कंप्लीटली फील विद दैट ट्विग्स होती है, क्योंकि गार्डनिंग करते हैं तो कभी कभार वो सूखे पत्ते का जो कुछ हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, तो वो कभी कभार 6-7 महीने भी लग जाते हैं. बट इफ यू हैव अ प्लेस एंड यू कैन डू, yes, you can add that too. And it's my pleasure to share whatever I know.
and knowledge sharing is the best way to make people aware. और it's a chain reaction. अगर मैं करती हूँ, मुझे देख के 2 जन ने भी शुरू किया, तो I feel good कि चलो हमने कुछ अपनी मदर अर्थ के लिए कुछ किया. As an individual, this is the I think only thing we can help our environment, because हर टाइम पॉसिबल नहीं होता है जाके कुछ ये बहुत प्लांट लगा लिए, ये कर दिया, बट ये तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं. And it hardly take 1 or 2 minutes a day. So, thank you, Didi. It was a really informative class. Although I joined it a little late, but I understood what we are doing. And really, thank you. A great thank you that it was a really informative class. And it will help me in future to do something which I like. I like planting trees and doing all these things, helping nature. Thank you, Didi, very much. Thank you, Nitin, for joining and sharing your thoughts. Hope we will have more classes like this in future. So this will depend upon the responses. Like I felt there is a need of this today. So depending upon how in the group people take it and they ask for, we will definitely have more and more sessions on this and other challenges which we are facing. So yes, I think we should know more about this, because we should know what we can do with our waste, and to help our nature, we should know it. We should know it definitely. So maybe Kena ji, would you like to share something about Tree Walk? Like today they are celebrating Composting Day. So maybe if you want to share a little about their initiative, what they intend to do, and how you are playing a role with them. Tree Walk is a local organization, and it's not an NGO. It's just we like-minded people gather and started one group. It is from 2013. Initially what happened, they go to some garden or some places where they can people join with them, and they saw native trees and its usefulness. तो ऐसे करके 2 जन से शुरू करा था, एंड नाउ टेलीग्राम में अभी 400 से 500 जन है जो सब होम कंपोस्टिंग करते हैं. अपना जैसे अपना खाना खुद उगाओ, जो भी हो सके. वी आर थिंकिंग कि एटलीस्ट वीक में एक बार ऐसा हो सके कि होम ग्रोन फूड हम खा सके, और मिनिमाइज द इफेक्ट. जो भी हमारा रूटीन प्रैक्टिस से जो भी हम जनरेट करते हैं, हमारा कार्बन है या व्हाटएवर अदर थिंग, वी ट्राई टू रिड्यूस इट. तो ट्री वॉक एक इनिशिएटिव है, एक सोच है. लोकेंद्र जी है जिन्होंने ये शुरू करा था. तो हम कहीं गार्डन जाते थे या कोई स्कूल कैंपस हो, तो वहां जाके वी सॉ दिस ट्रीज अलग अलग. क्योंकि कभी कभार क्या होता है, वी नो द कॉमन ट्रीज के जो नाम है वो पता होते हैं, पर जो कभी कुछ अनयूजुअल होता है, प्लांट्स या श्रब या, तो वी हैव नो आइडिया कि कौन सा है, क्या नाम है, उसकी क्वालिटीज क्या है. तो वैसे वो लोग एवरी सैटरडे होता था एक टाइम के, सुबह जाते थे हम, प्लांट्स को देखते थे, प्लांट से सीखते थे. मैंने 1-2 ही टूर करी है, बिकॉज आई वाज वर्किंग अर्लियर, तो इट वोंट बी पॉसिबल फॉर मी. बट वैसे शुरू करके उन्होंने फिर एनवायरमेंटल इंटरवेंशन के थ्रू ये कंपोस्टिंग शुरू किया, सबको कंपोस्टिंग सिखाया. फिर कैसे हमारे गार्डन को हम टॉक्सिन फ्री रख सकते हैं. जैसे लास्ट वर्कशॉप में आपने बोला था, वो बनाना पील है, ओनियन पील वाटर है, खट्टी छाछ है, या फिर कभी कभार हम अमृत जल बना सकते हैं. तो उससे हमारे प्लांट, वी डोंट नेवर यूज केमिकल बाउंड एनी ऑफ द मटेरियल, जो हमारे सॉइल को, हमारे एनवायरमेंट को वो जैसे नुकसान करता है इधर वे. कैसे हम हमारे बटरफ्लाई गार्डन में बटरफ्लाई को एज अ गेस्ट इनवाइट कर सके,
हमारे गार्डन में कैसे ये बर्ड्स आ सके, बैठ सके, खेल सके। तो वैसी प्रैक्टिसेस हम यूज करते हैं। बायो एंजाइम कैसे बनाना है। फिर अभी लाइक वी स्टार्टेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कुछ भी करके जैसे जैसे पॉसिबल हो, जैसे हमारा बजट हो, वी कैन डू मेक अ खंभाती कुआं, और प्रॉपर वो बोर जो फेल हो गया है उसमें हम रेन वाटर को डाइवर्ट करके ग्राउंड वाटर लेवल है वो इंक्रीज कर सके। तो इट्स जस्ट इनिशिएटिव एंड फिर वो लोग जुड़ते गए, सीखते गए। आई हैव जॉइंड ट्री वर्क लास्ट ईयर ओनली। ये लॉकडाउन में ये सब पता चला, एंड देन आई एम आल्सो अ मेंबर ऑफ इट। तो एनीवन कैन बी काफी कभार 2 फ्रेंड है वो जर्मनी से है, नेपाल से है, तो इट्स अ कंट्रीज में भी बहुत सारे ऐसे हैं कि सब जुड़े हैं ट्री वॉक से। सो यू विल लर्न। उन्होंने किचन गार्डनिंग का भी एक ग्रुप है। तो जो भी हमारी क्वेरीज होती है, जो भी छोटा छोटा काफी एक्सपीरियंस लोग हैं जो 10-10, 12-12 साल से किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, तो कुछ भी क्वेरी है, दे आर ओपन फॉर एनीथिंग। कुछ भी पूछो, दे विल प्रॉम्प्टली रिप्लाई यू, दे विल टीच यू। सो मेनली नॉलेज शेयरिंग है। जो भी हमें पता है विल जो भी आता है दूसरे को सिखा के थ्रू चेन रिएक्शन वी कैन try to improve our environment। तो कैसे इंडोर प्लांट्स बढ़ा के हम हमारा इंडोर प्योर रख सकते हैं। तो छोटी छोटी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थ्रू ट्री वर्क मुझे जानने को मिली। एंड दे हैव ऑर्गेनाइज वन ग्रीन ट्रेनर प्रोग्राम, तो उसमें ये पार्ट ऑफ इट। एंड फिर आई स्टार्टेड टेकिंग वेबिनार्स ऑन कंपोस्टिंग एंड नॉन टॉक्सिक गार्डनिंग टेक्निक्स एंड ऑल। So my journey is too short, but it's a beautiful. I learned a lot, and I'm so happy that I'm doing something for my environment. Because कभी कभार होता था ना, जब भी ऐसा एनवायरमेंट डे होता है या ऐसे कुछ भी अर्थ डे होता है, तो वी सॉ इतना कुछ पढ़ते हैं मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, इतने इतना किया, तो कई बार एक गिल्टी फील होता था कि कुछ नहीं कर पाते अपने घर को। हाँ, घर में मैंने सारे फ्लोर पे ग्रीन पैच बना के रखा है। आई हैव अ स्मॉल हाउस, बट जो भी 3 लेवल है सभी में मैंने गार्डनिंग वो पहले होता है। अब तो कोई भी कॉर्नर के घर के कॉर्नर में यू कैन सी द ग्रीन थिंग। सो दिस इज आवर मेन ये। पर उसके बाहर मैं कुछ नहीं कर पाती थी, तो थ्रू कंपोस्टिंग और ये सब सबको सिखा के, तो आई फील सो एक सेटिस्फेक्शन होता है ना कि हाँ कुछ किया, आज के दिन कुछ किया। तो बस मैंने कंपोस्टिंग शुरू किया और फिर तो जर्नी अभी चालू है, इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन। सो आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ। और फिर आपसे मिलना हुआ, वो कॉन्शियस ईटिंग में भी काफी कुछ सीखे, हाउ टू लीव द सस्टेनेबल लाइफ। तो दिस इज द अदर वे, जैसे आपसे सीखा। तो बस जर्नी इज ऑन। लेट्स सी कितने का मैं अवेयर कर सकती हूँ, कितने का थोड़ा मैं अगर कुछ चेंज कर पाऊँ किसी का माइंडसेट, और कोई शुरू करे ये चीज, बस वही है। एंड वंस द पेंडेमिक गॉट ओवर, थोड़ा नॉर्मलाइज होगा, तो हम ऑफलाइन जाके सोसाइटीज में जाके, कॉलेजेस में, स्कूल में जाके कैसे ये सब कन्वर्ट कर सकते हैं, कंपोस्टिंग कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो वो सब वी आर गोइंग टू स्टार्ट in the pipeline, but yes, we will do it. Thank you so much. This is all about. Thank you केना जी अपने लाइफ की जर्नी शेयर करने के लिए और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। I think this is so much inspiring for everyone to take one conscious effort in their life, and I think with this is a very high note for everyone that we have a life inspiration. Like anything can be done in 1 year. You have made so many changes in your life. So every one of us over in this group can make that change in their life, and I hope it will happen very soon. Today is the 8th day of our program. Means like the 10th day we promise that the support we will be giving. So there are 2 more days, and I hope the recipes also which I am sharing is inspiring you to take that step. So keep sharing your thoughts, your ideas, feedback and all. And we will come back with more sessions if this is you are feeling this valuable.
Thank you so much, everyone, for joining today and sharing your thoughts. Special thank you to Kena ji for coming here and sharing your journey and inspiring us in a positive way. It's my pleasure. Pleasure is not mine. Because you know, learning always. मैं भी बहुत कुछ ये कभी-कभार ऐसा होता है ना, ये क्वेश्चनरी भी हमें काफी कुछ सिखाती है. Like now I'm going to learn how to make a vermicompost. और उसका पूरा प्रोसेस मैं कभी-कभार आगे सोचा नहीं था, but yes, कभी साथ में रह के भी ये क्वेश्चनरी भी हमें वो एक ब्रश अप करने का वो काम करती है. तो it's been a great thing. Thank you so much. So thank you everyone for joining. I am ending the call today over here. See you again very soon in the group and with the queries. Bye bye everyone. Thank you everyone for joining today.